اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اڈیالہ جیل القادر ٹرسٹ کیس اور آج 9 مئی کے کیس میں بھی پروسیڈنگ ہوئی اندر. ابھی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. پہلے تو عمران خان صاحب کی بات سب سے اہم ہے، وہ کر کے پھر اپنی ایک بات میں کرنا چاہوں گا 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی. عمران خان صاحب نے آج مجھے کہا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے کہ اگر پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ حکومت حملہ آور ہوئی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ظاہر ہے اشارہ جو تحریک انصاف کے حق میں ایک فیصلہ آیا ہے جو ہمارا حق تھا ریزرو سیٹس کا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہ ہوا تو پھر وہ احتجاج کی کال دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر تو خدا نہ خواستہ ملک اللہ نہ کرے سرزمین بے آئین ہو جائے گا، پھر تو انارکی کی سچویشن ہو جائے گی. اگر آج فیڈرل حکومت یہ کر رہی ہے شہباز شریف کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے اور اس پہ عمل نہ ہو؟ اگر پاکستان میں چلنا ہے تو یہاں آئین پہ عمل ہونا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل ہونا ہے. سیاسی مفادات کی خاطر اگر حکومتیں پارلیمنٹ کے ذریعے حملہ آور ہوں گی، آج یہ حکومت میں ہے کل کوئی اور ہوگا، ہم ہوں گے کوئی اور ہوگا. یہ روش غلط ہے، یہ روش نہیں ہونی چاہیے. ملک میں کچھ نہ کچھ نظام رہنے دیں، کچھ نہ کچھ آئین پہ عمل ہونے دیں. آج بھی ہمارے جن ایم صاحبان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، ہم اس پہ جو قانونی چارہ جوئی ہوگی وہ کریں گے. لیکن 9 مئی کے حوالے سے ایک بات کر کے پھر میں 8 فروری کی بات کروں گا الیکشن کی. بڑا 9 مئی ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے. اس قوم پہ اب رحم کریں، اس قوم پہ رحم کریں اور اس ملک کو آگے جانے دیں. 9 مئی پہ عمران خان صاحب نے 1 سال پہلے کہا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیے، اور اس پہ بارہا ترجمان ISPR انہوں نے بھی 1-2-3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. تو جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور جب DGISPR بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا امر مانے ہے کہ فیڈرل حکومت جو 9 مئی کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں؟ آپ خط لکھیے، سپریم کورٹ کو خط لکھیے اور سپریم کورٹ کو آپ استدعا کیجئے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. یا تو پھر آپ اس ڈنڈورے کو پیٹنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں چاہتے. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جن لوگوں نے اندر جا کے آگ لگائی یا نقصان کیا ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، ان کو میں پارٹی سے بھی نکالوں گا. اور اگر ہمارے سامنے فوٹیجز لائی گئیں، CCTV فوٹیجز لائی گئیں، تو ہم اس پہ معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 1 سال سے بے گناہ اگر عمران خان جیل میں ہے تو سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کے کھینچنا، کیا اس پہ کوئی معافی مانگے گا؟ کیا اس پہ کوئی معذرت کرے گا؟ کیا 25 کروڑ کے لیڈر کی، سابق وزیر اعظم کی عزت نہیں ہوتی؟ جناح ہاؤس تو مقدم ہے، ہمارا بھی ہے، جو وہاں تھے ان کا بھی ہے. اسی طرح جو GHQ ہے وہ ایک نیوز سینٹر ہے پاکستان کے دفاع کا، اس کی حفاظت تمام قوم پہ لازم ہے. لیکن ساتھ ساتھ 25 کروڑ عوام جس شخص کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ایک شخص نہیں ہوتا، وہ 25 کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہوتا ہے. تو جو ہوا 9 مئی کو غلط تھا، رینجرز کو نہیں بھیجنا تھا، کرپشن کا کیس تھا، نیب کے لوگ جا کے گرفتاری ڈالتے وہ بھی قانون کے مطابق. اس لیے 9 مئی ایک ایسا دن ہے جو میں افسوس سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا کارکن، وہ تحریک انصاف کا ورکر
जो सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इमरान खान से जुड़ा, उसने जितना इमरान खान को डिफेंड किया, उस वर्कर ने उतना ही अपने मुल्क को और अपनी पाक फौज को डिफेंड किया। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बच्चों से ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते इन बच्चों के साथ। ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत पे बड़े हैं। उनको इंतशारी ना कहिए, इनको इंतशारी ना कहिए, ये दहशतगर्द नहीं है। ये वहां पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और खड़े होते रहे जहां कोई खड़े होने वाला नहीं होता। पाकिस्तान आज सिर्फ बॉर्डर से दिफा पे मजबूत नहीं होगा। आपको एक ऐसी वाइब्रेंट यूथ चाहिए जो दुनिया के उस तमाम प्रोपेगेंडे का जवाब दे सके जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, या इस्लाम के खिलाफ, या खत्म नबूवत के खिलाफ, या पाकिस्तान के आईन के खिलाफ, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के खिलाफ होता है। उसके लिए बगैर वर्दी की फौजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वर्कर और पाकिस्तान का हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बच्चा। आज भी इमरान खान जेल से क्या कह रहे हैं कि 14 अगस्त की रात सब निकले और पाकिस्तान की जश्न आजादी उस तरीके से मनाएं जिस तरह मनाना पाकिस्तान की शान है, जिस तरह हक बनता है। आप सेलिब्रेट कीजिए 14 अगस्त की रात। इमरान खान साहब की पूरी कौम को कॉल है कि जिस तरह एक जिंदा कौम अपनी जश्न आजादी सेलिब्रेट करती है। और साथ में 8 फरवरी की बात करता चलूं, टैक्स देती है यह कौम, इस मुल्क के असल वारिस है यह कौम। इस कौम से इलेक्शन में मशवरा लिया गया कि क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान पे कौन हुकूमत करेगा। 2/3 अक्सरियत ने फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान। अब हमें ये बताइए कि आप इलेक्शन में क्यों गए जब आपने कौम की नहीं माननी थी। यहां चीफ जस्टिस साहब पे सवाल उठता है, मोहतरम काजी फाज ईसा साहब पे। काजी साहब, आपके हुक्म पे इलेक्शन हो गया लेकिन आपके हुक्म को पूरा नहीं माना गया, लेटर एंड स्पिरिट में नहीं माना गया। सिर्फ इलेक्शन नहीं कराना था, आजाद शफाफ भी कराना था। और जो फॉर्म 47 से हमला हुआ है, आधा मैंडेट हमारा चुराया गया है। आज भी हमें अगर हमारा मैंडेट मिलता है, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेती है, जुडिशल कमीशन बनता है, तो हमारी 178, ये लफ्ज याद रखिएगा, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी की सुबह 178 फिगर आ रहा था हमारा, 17 फिगर था मियां शहबाज शरीफ साहब की जमात का। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, उसके लिए हम अदालत में अपनी जदोजहद करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रोड पे, पार्लिमान में, मीडिया के सामने हमारा पुरअमन एहतजाज और सियासी हमारी जदोजहद जारी रहेगी जब तक हमें हमारा मैंडेट नहीं मिलता। इसी असेंबली के अंदर अदम एतमाद आ सकती है अगर तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट मिले, जो एक कानूनी आईनी प्रोसेस होगा। हाँ, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू के कहने पे अदम एतमाद नहीं लाएगी, अमेरिका के इशारों पे अदम एतमाद नहीं लाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जिस तरह सिंध हाउस में हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के मेंबरान की जमीनों की मंडियां नहीं लगाई जाएंगी अमेरिका किसी ताकत की हिमा पे। होगा, इंडिजिनस होगा, सबके सामने होगा और दिन की रोशनी में होगा, लेकिन उससे पहले हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए। अगर आपने तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट नहीं दिया, इसका मतलब है इधर पाकिस्तान की जमहूरियत बराए नाम जमहूरियत है। किसी को भी जिस तरह डॉक्टर पर्ची लिख के दे देता है ना, ये दवाई लो आफाका आ जाएगा, आपने पर्ची ली फॉर्म 47 की, लेकिन वो पर्ची जेली है क्योंकि वो डॉक्टर जेली है। जेली दवाई से ना मरीज ठीक होगा और ना जेली जमहूरियत से पाकिस्तान ठीक होगा। आखिर में फिर ये बात 9 मई से आगे चले, जिसने गुनाह किया सजा जरूर देने की अदालत से, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, सिविलियन कोर्ट से। जिसने जुर्म किया उसको सजा जरूर मिले, लेकिन कौम को 9 मई का असीर ना बनाए। इमरान खान साहब पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करता है, अना के कोई हमालिया से उतरना पड़ेगा। ये कहना कि आप माफी मांगो, इमरान खान से कौन माफी मांगेगा। माफी मांगने की तमन्ना कहीं पाकिस्तान को नुकसान न पहुंचाए। हमें पाकिस्तान को बचाना है, हमें पाकिस्तान की सालिमियत को बचाना है और आने वाली नस्लों के लिए इस जमहूरियत को हकीकी जमहूरी कल्चर देना होगा। ये पाकिस्तानी पाकिस्तान से कब तक ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। पाकिस्तान का बेस्ट दिमाग मुल्क से बाहर जा चुका है, नौजवान को कोई होप नजर नहीं आ रही। गरीब आदमी
40,000 का मुलाजिम, ये कैमरामैन सारे खड़े हैं, आप मुझे बताइए, और जो कैमरों की वसात से करोड़ों पाकिस्तानी मुझे सुन रहा है, 30-40 हजार का मुलाजिम 25-30 हजार का बिल कहां से दे? आप तो बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, आप तो कहते थे महंगाई हो गई है, महंगाई मार्च करते थे, अब आप किसके खिलाफ मार्च करेंगे? ये जो 4 गुना महंगाई बढ़ गई है इमरान खान साहब के दौर के बाद, यही वो चीज थी जिससे इमरान खान खबरदार करते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, पाकिस्तानी कौम के साथ ये जुल्म मत करो। आज जेब में आपके हजारों रुपए होंगे लेकिन काम उससे कुछ नहीं होता। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा कि सीट्स आपको मिलती नजर नहीं आ रही, गवर्नमेंट सीट नहीं देना चाह रही, कुछ इत्तेहादी आपके नाराज हैं, कुछ पार्टी से लोग निकाले गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सुबह शेख रशीद साहब ने 9 मई के वाक़े में यहाँ पेश हुए, उन्होंने ये कहा कि ये अगस्त का महीना बड़ा अहम है, एक बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। क्या लगता है शेख रशीद को वापस अपनी इत्तेहादी बनाएंगे, क्या करेंगे? ज़रा ये थोड़ी सी पार्टी पॉलिसी है वो वाज़ह करें। शेख रशीद साहब काबीना के उन मेंबरान में से थे जो हमेशा गरीब की बात करते थे और कौल अल्लाह कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते थे। मेरे दिल में उनकी बहुत कदर है और तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने लंबा स्टैंड लिया है। उनका जो इशू है मैं इमरान खान साहब के गोश गुजार करूंगा। शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के साथ उन्होंने बहुत हद तक वफा निभाई है, इंशाअल्लाह खान साहब उसको अच्छे तरीके से देखेंगे। सीट की बात बता रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको सीट नहीं देना चाह रही। गवर्नमेंट से सीट मांग कौन रहा है? हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तेदा कर रहे हैं। हमें मांगे तांगे की हुकूमत लेनी होती तो अब इमरान खान साहब अंदर बैठे होते, डील करनी होती। हम तो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आपने फैसला दिया था ना, आपने फैसला दिया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, तो आपके फैसले के खिलाफ